ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਹੋ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ? ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ? ਕਿਉਂ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ सच है। और अगर भविष्य सच ही है, प्राणों की चाहत भी सच है, तो बाधा की है? फिर रोक की है? रोक है कूड़, रोक है झूठ। चाहत सच दी है तो फिर झूठ रोक किस तरह हो गई? कूड़ बाधा किस तरह बन गया? दरअसल चाहत सच दी जरूर है, पर कशिश झूठ दी भी है। प्राणां दे च प्यास सच दी जरूर है, पर असर कूड़ दा भी है। इसे नूं कहंदे ने कि मनुख दुबदा दे च जीवदा है, सच दी चाहत दे च जीवदा है, कूड़ दी कशिश दे च जीवदा है। सच दी प्यास दे च जीवदा है, झूठ दे असर दे च जीवदा है। जीवन दो पासे हर वक्त रागब होंदा है। इंज समझो, एक पैर अगे रखिया, एक कदम पिछे रखिया, मनुख उत्थे दा उत्थे ही रहा। प्राणां विच सच दी प्यास ने अगे जाण ते मजबूर कीता, कूड़ दे असर ने फिर पिछे खिंचिया। सच दी तड़प अगे लै गई, कूड़ दी कशिश पिछे लै गई। निरंकार दा रस अगे लै गया, संसार दा रस पिछे लै गया। आत्मा दे रस ने अगे जाण ते मजबूर कीता, शरीर दे रस ने पिछे खिंच के सुट दिता। इस तरह मनुख दी जिंदगी दुबदा दे च बतीत होंदी है। दुबदा दा मतलब दो पासे दी धावना, दो पासे दी भटकना। तो मंजिल मनुख दी सच है, पहुंचना मनुख ने सच तक है, बाधा कूड़ है। इस कूड़ दी पाल नूं, इस कूड़ दी कंध नूं किवें तोड़ीए? क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। समुची मनुखी जिंदगी दा ये अहम प्रश्न है, सब तो पहला प्रश्न है, जिसनूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी बाणी द्वारा खड़ा करदे ने। समुची मनुखता दा जद ये सवाल है, तो जवाब भी कोई अजीम चिंतक ही दे सकता है। इसदा जवाब भी कोई ओ दे सकता है जो झूठ दे असर तो बच के सच तक पहुंचिया होवे। इहदा सही मैनिਆਂ दे जवाब भी ਉਹ दे सकता है जो शरीर दे तल तो उच्चा उठ के जमीर दे तल ते पहुंचे होवे। तो सवाल ते बहुत वड्डा है, किवें सचियार होईगे? क्योंकि परमात्मा जे सच है तो सच विच सचियार ही लीन हो सकता है, कुड़ियार लीन नहीं हो सकता। क्यों कि एक रब्बी नियम है,
ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਗੰਧੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਗੰਧ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਜਾਤੀ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਵਿਜਾਤੀ ਨੇ। ਤੋ ਸੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਦੋਵੇਂ ਵਿਜਾਤੀ ਨੇ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੜਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਨ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਮਿਲਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਿਲਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਮਿਲਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਨ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੈ। ਕੂੜ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੂੜ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕੂੜ ਵਿਪਤਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਕੂੜ ਸੁਪਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ, ਕੂੜ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਪਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ख्वाब ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ख्वाब ਚਾਹੇ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੋ ख्वाबां ਦੇ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ। ख्वाबां ਦੇ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਿਥਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਨ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਉੱਤਰ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਮਨ ਖਿੰਡ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਔਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵੇਂਗਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਸੁਖ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਦੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਸਵੈਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
अगर इतनी खुल भी नहीं दिती ते सिर्फ मजबूरी हुक्म मनना ही है ते हुक्म नूं मन के ही जीवना है, तो फिर उपदेश संदेश देने की भी कोई लोड़ नहीं कि ऐ बंदे तू प्रभु का हुक्म मन, उसदे हुक्म दे जी, उहदी रजा दे जी। अगर रजा तो उल्ट मनुख जी ही नहीं सकता तो रजा दे चलन का उपदेश बेमैनी है। हुक्म नूं मनुख रद्द ही नहीं कर सकता तो हुक्म दे चलन का उपदेश की मैंने रखता है। और यही मनुख की महानता है कि हुक्म की पालना भी कर सकता है, हुक्म की उलंघना भी कर सकता है, रजा दे च भी राजी रह सकता है, रजा तो उल्ट भी चल सकता है। रजा दे च चलण नाल मनुख नूं सुख मिलता है और प्रभु की यही रजा है कि जीव सुख भोगन, जीव आनंद माणन, जीव प्रसन्न रहन, जीव खिड़े रहन। पर जे हुण नियम की उलंघना की है, ये प्रभु की रजा नहीं है, ये उसकी चाहत नहीं है, लेकिन उसने खुल दी है, ये भी उसकी दया है, ये भी उसकी बख्शिश है, ये भी उसकी रहमत है। जैसे नियम की उलंघना हुई वैसे ही दुखों का जन्म हो गया। जैसे मनुख अख बंद करके भी चल सकता है, अखां खोल के भी चल सकता है, पर अख बंद करके चलेगा ठोकर खा जाएगा, गिरेगा, चोटां लगणगियां। और जद चोटां लगन, जख्म पहुंचन ते गिला करे प्रभु ते मैं ठोकर खा गया, तो प्रभु ऐसा कह सकता है तो नियम की उलंघना की थी, अख खोल के चलना सी, वेख के चलना सी। साहेब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का बड़ा सुंदर एक वाक है कि कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुए परे। मनुख दे हथ दे च बुद्धि दा दीपक प्रभु ने पकड़ा दिता है, तू इस रोशनी दे च अपना जीवन बतीत कर। पर जे हुण मनुख अख बंद करके चले, इस रोशनी नूं वेखे ही ना, ठोकर खा जाए, गिर जाए, ये जिम्मेवारी प्रभु दे नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल पठाया। करते पुरख ते कोई दोष नहीं आउंदा, प्रभु ते कोई दोष नहीं आउंदा। जीव जद नियम की उलंघना करदा है तो दुख भोगण दे कोई ना कोई कारण वसीले पैदा ही हो जाते हैं। मनुख नूं दुखी होना ही पैंदा है, मनुख नूं विपता सहेड़नी पैंदी। तो सुख प्रभु दी रजा है, प्रभु दी चाहत है, प्रभु दी मंग है। प्रभु ये चाहता है जीव सुखी रहे, पर रजा तो मनुख उल्ट चलिया, हुक्म तो मनुख उल्ट चलिया, नियम की उलंघना की थी तो सिवाय दुख तो होर कुछ नहीं है। असी देखते हैं कि सड़क ते चलन वालियां वास्ते बकायदा ट्रैफिक नियम, रस्ते दे चलन दे नियम निर्धारित किए गए हैं। वो महज इस वास्ते किए गए ने कि टकराव ना होवे, किधरे खामा खाई किसी दी जान ना चली जाए। और कोई मनुख ये आखे और दावे नाल आखे कि मैं चलना ते सड़क ते है, नियम की पालना नहीं करनी, मैं ट्रैफिक रूल की पाबंदी नहीं रखनी, गिरेगा, चोट खाएगा। वो जिम्मेवारी गिरन वाले दी है, नियम ते बन चुके। तो प्रभु ने भी संसार दे जीवन नू चलाण दे नियम बना रखे। नियम की ने? वो धर्म ग्रंथां दी बाणी, ये प्रभु दे नियम ने। महापुरुषां दे उपदेश, ये अकाल पुरख दे नियम ने। वो गाहे बगाहे दसदे रहंदे ने जिंदगी दे नियम ए ने, जीवन दे नियम ए ने। और जिथे नियम की उलंघना की थी, सिवाय दुख तो होर कुछ नहीं होगा, सिवाय विपता तो होर कुछ नहीं होगा। उसे नियम नू गुरु नानक देव जी महाराज हुक्म कहते हैं। ऐ बंदे
उसका यह हुक्म तेरे नाल लिखा है। तू अखां दा गलत इस्तेमाल करेगा और ज्यादा इस्तेमाल करेगा, अखां रोगी होंगी। तू जबान दे विच मिथ्या वाक रखेगा, रसना मैली हो जाएगी। तू किसे वास्ते मुश्किलां पैदा करेगा, स्वयं मुश्किलां दे जिंदगी बतीत करनी पैगी। ये प्रभु ने इस ढंग का नियम बना रखा है, जैसे धरती नूं एक बीज दे ही है, वो बीज अनंत गुणा हो के वापस आउंदा है। अटल नियम है। बीज चाहे चंगा बोईए ते चाहे माड़ा बोईए, चाहे किसी जहरीले बूटे का बीज बोईए ते चाहे किसी अमृत फल देने वाले फलदार दरख्त का बीज बोईए, एक बीज अनंत बीज होके प्रफुल्लित होंदा है। बोया होया एक दाना अनंत दाने होके वापस आउंदा है। हू बहू कर्म चाहे शुभ करिए चाहे अशुभ करिए, ये अनंत गुणा होके वापस आउंदा है। किसी नूं सुख दिता है, अनंत गुणा सुख वापस आउंदा है। किसी नूं हसाया है, हासियां नाल झोली भर जाती है। किसी नूं तू एक फुल भेंट कीता है, समुचे रस्ते दे फुल बिछ जाते हैं। पर याद रख, तू किसी दे रस्ते दे सिर्फ एक कंडा रखे है, जिंदगी दी हर राह दे कंडियां तो बिना होर कुछ नहीं मिलेगा। तू सिर्फ एक रोड़ा ही किसी दे रस्ते दे रखे है, हुण जिधर जावेगा रोड़ियां ते ही चलना पेगा। इते दिता लईए अपना, अण दिते किछ हथ ना आवे। जमीन नूं जो कुछ देईए वापस आउंदा है, जगत नूं जो कुछ देईए वापस आउंदा है, अनंत गुणा होके वापस आउंदा है। बस ये नियम है। दुखा नाल झोली भरी हुई है साडी, तो जगत नूं दुख दिता होवेगा। हंजुआं नाल भरी हुई है साडी अख, किसी नूं रोण ते मजबूर कीता होवेगा। एक आलम दा कहना है, माना कि इस जमीन को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम ही कर गए गुजरे जिधर से। जिथों लंघे हां ये ठीक है कि समुची धरती नूं गुलिस्तान नहीं बना सके, पर जिथों लंघे हां कंडे जरूर हूंजे ने, पत्थरां नूं जरूर चुने ताकि लोकी आसानी नाल रस्तियां नूं अबूर कर सकन। तो जो किसी दा रस्ता आसान करदा है, उस मनुख दे अपने रस्ते आसान हो जाते हैं। और जो किसी दा रस्ता मुश्किल करदा है, चारों पासे सिवाए मुश्किलां दे उसकी जिंदगी दे होर कुछ नहीं आउंदा। साहिब कहंदे ने यही हुक्म तेरे नाल लिखिया है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ये हुक्म तेरे नाल लिखिया होया है। इसनूं तू मन भी सकदा है, इसनूं तू ठुकरा भी सकदा है। नियम दी तू पालना भी कर सकदा है, नियम दी तू उलंघना भी कर सकदा है। और एक गल स्पष्ट है, अगर नियम दी उलंघना मनुख कर ही नहीं सकता, ते नियम दी पालना करना उसकी मजबूरी हो गए, तो नियम पालन करने का उपदेश देना व्यर्थ हो गया, फिजूल हो गया। इस्लामी साहित्य के अंदर एक बड़ी सुंदर गाथा है। हजरत अली पैगंबरी पुरुष मुहम्मद साहब नूं पुछदे ने दस्त बस्ता, हजरत कुछ मैं भी कर सकदा या सब कुछ खुदा करदा है, अल्लाह करदा है? मुहम्मद साहब बड़े दूरदृष्ट और अक्सर पैगंबरी पुरुष बड़े बारीक बीन होंदे ने। उन्होंने कहा, अली जे मैं शब्द प्रमाण दे राही बोल के तेनू समझाने की कोशिश की थी, नहीं समझ सकेगा। मेरे बोल तेरी बुद्ध की पकड़ दे नहीं आएंगे। इस वास्ते मैं किसी वक्त तेनू प्रत्यक्ष प्रमाण दे राही समझावांगा। हजरत अली हाथ जोड़ के कहने लगा,
ਬਈ ਪਿਆਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਲਾਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਚ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਆਸ ਫਿਰ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਅਲੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲੈ, ਚੁੱਕ ਲੈ। ਇੱਕਦਮ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਠਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? तो हजरत अली कहने लगे, फिर जड़ा चुके होया मैं सज्जा पैर है ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗਾ। ਅਲੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਦਸਤਬਸਤਾ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। तो ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, खुल है। और तू सज्जा पैर चुकया, पर तू चाहता ते खब्बा पैर भी चुक सकता सी। जरूरी नहीं कि सज्जा पैर जमीन तो चुकना सी, खब्बा भी चुक सकता सी। पर जे एक दफा सज्जा पैर जमीन तो चुक लिया तो उसे वक्त खब्बा पैर चुकना औखा हो जाता है, औखा हो जाता है। ऐ मनुख, तू शुभ कर्म भी कर सकता है, अशुभ कर्म भी कर सकता है। अली, पर जे एक दफा अशुभ कर्म दी चोण कर लई फिर शुभ कर्म करना औखा हो जाएगा। और ये उदों ही हो सकता है जब अशुभ कर्म दा पैर तू रख देंगे तां ही शुभ कर्म कर सकेगा, वरना नहीं। कर्म करने दी तेरी स्वतंत्रता है, फल खुदा दे हथ च है, फल हथ अल्लाह दे हथ च है। इत्थों तू पतंतर है। तू ये आखें बीज ते मैं बो दिता है, फल मैं नहीं खाना, फल तेनू खाना ही पेगा। फल अपनी झोली दे तेनू रखना ही पेगा। कर्म योगी श्री कृष्ण जी दा भी ऐसा ही कहना है, ऐ अर्जन कर्म तेरे हथ च, फल मेरे हथ च। हिंदुस्तान दे तमाम रहबरी पुरुषां दा यही कुछ कहना। ते कर्म करन दी पूरी ऐ मनुख तेरी स्वतंत्रता है। गुरु नानक दी शिक्षा दीक्षा भी यही है। उदम करेंदियां जीव तू, कमावदियां सुख भुंच, ध्यावदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत उदम कर। इदा मतलब है उदम करन दी समर्था मनुख दे कोल है, पर आलस होने का ढंग यह भी मनुख दे कोल है। मनुख आलसी भी रह सकता है, मनुख उदम भी कर सकता है, मनुख शुभ कर्म भी कर सकता है, मनुख अशुभ कर्म भी कर सकता है। मनुख अखां खोल के भी चल सकता है, मनुख अखां बंद करके भी चल सकता है। तो दुख की है नियम दी उलंघना, नियम दी सूझ नहीं, नियम दी समझ नहीं, प्रभु दी देन दी समझ नहीं। और जब नियम दी समझ ना आवे ते मनुख नियम दी उलंघना करे, दुख झोली दे च पै जांदा है। जद भी मनुख कोई दुखी है उन्हों इतना ही समझ लेना चाहिए, किधरे मेरे कोल हुक्म दी उलंघना हो गई है, किधरे मेरे कोल नियम दी उलंघना हो गई है। जिस तरह किसी देश दा राज प्रबंध चलता है ते राजसी कानून नियम बना दिते जांदे ने, पर मनुख उस नियम दी उलंघना भी करता है, फिर राज दंड मिलता उसनूं, कानून उसनूं सजा देंदी है, कानून दी दृष्टि दे वो मुजरम होंदा है। इस तरह प्रभु ने नियम बना रखे ने। जिथे मनुख नियम दी उलंघना करदा है तत छिन उसे वक्त दुख उसदी झोली च पै जांदा है।
प्रभु अपनी तरफों बिल्कुल निर्लेप है, तटस्थ है, एक पासे बैठा बैठा वेखे वख इकेला। तो साहब कहते हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। उस हुक्मी दी रजा दे चलना। केड़े हुक्म दी रजा दे चलना? जो हुक्म नाल लिखिया होया है। बस रजा दे चलदियां ही झूठ दी कंध ढह जाती है, झूठ दी पाल टुट जाती है, मनुख सचियार हो जाता है, सच दी लीनता हो जाती है। वो हुक्मी जद इतना वड्डा है तो उस दे हुक्म दे की कुछ हो रहा है। कुदरती गल है, जद हुक्मी वड्डा है तो उसका हुक्म भी बहुत वड्डा होगा। जद वो आप वड्डा है तो उसकी मर्यादा भी बहुत वड्डी होगी। उसके हुक्म दे की कुछ हो रहा है। जगत गुरु बाबा फरमान करते ने, हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाए। उसदे बनाए हुए नियम दे मुताबिक ही आकार बनते ने। आकार खंडां ब्रह्मंडां दे, ग्रह नक्षत्रां दे। आकार पहाड़ां दे, दरियावां झीलां ते सागरां दे। आकार पशु पंखियां दे, कीड़े मकोड़ियां दे, बनस्पति दे और मनुष्य दे। सब कुछ हुक्म दे है। भावें अजोके समय दे विज्ञान अपनी चरम सीमा ते पहुंचे है, लेकिन विज्ञान नूं अजे खून बनाने की जांच नहीं आई। भोजन तो खून किवें बनता है, रोटी तो खून किवें बनता है, इसकी सूझ समझ अजे तक विज्ञान नूं नहीं आ सकी। इस वास्ते बंदियां दा खून कढ़ के बोतलों दे भर के हस्पतालों दे रखना पैंदा है। गल ते बिल्कुल मामूली। जीवन विज्ञान बना सके, आत्मा विज्ञान बना सके, इसका ते ख्वाब भी नहीं लेना चाहिए। विज्ञान ते खून भी नहीं बना सकता। भोजन तो खून किवें बनता है, ये साइंस की समझ तो परे है, ये विज्ञान की समझ तो परे है। और गल बिल्कुल मामूली। हालांकि शरीर दे जो भोजन जाता है वही भोजन खून बनता है। जो अन्न पानी असी खांदे हां यही खून बनता है। सारा अन्न पानी विज्ञानक दे अगों रख दो, आखो किसे आले नाल इसनूं खून बना दो। अजे विज्ञान की पकड़ तो ये गल परे है, तो मनना पेगा सब कुछ उसदे हुक्म दे। उसदे हुक्म दे की कुछ हो रहा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस दूसरी पौड़ी दे विस्तार सैर जिक्र करते ने, हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाए। जितने शरीर ने, जितने वजूद ने, जितने आकार ने, सब मर्यादा दे बने ने, सब हुक्मी दे हुक्म दे बने ने। और किसे थां भी भुल नहीं, किसे थां भी कमी नहीं। हर वस्तु अपने आप दे पूर्ण है। चाहे पहाड़ ने, नदी नाले ने, सागर ने, ग्रह नक्षत्र ने, कीड़े मकोड़े ने, पशु पंखी ने, हर वजूद अपनी थां ते अपने विच संपूर्ण है, मुकम्मल है। सो जितने आकार ने प्रभु दे बनाए हुए हुक्म द्वारा ही बने ने। साहिब कहते हुक्म ना कहा जाए। हुक्म इतना वड्डा है कि निक्की जबान नाल कहा नहीं जा सकता। उस प्रभु दी बनाई मर्यादा इतनी लंबी है, इतनी महान है कि छोटी जी जबान नाल कथन करनी बहुत औखी, बहुत औखी। मूल गल इस पौड़ी दे है कि सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। एक मनुख रेल दे सफर कर रहा है, उन्हें बक्सा ते बिस्तरा भी अपने सिर दे उत्ते रखिया होया। नाल बैठे साथी पुछदे ने, ऐसा क्यों? सिर दे उत्ते तू बोझ क्यों चुकिया है? कहंदा है, मैं चाहना रेल दे उत्ते वजन ना होवे, पर इनू कौन दसे जिस रेल ते तू बैठा है उस समान दा बोझ भी उसे ही रेल दे उत्ते है। मनुख भुलेखे करके कह देंदा है,
मैं कर रहा, मैं कर रहा, करता भाव अपने विचों पैदा कर लेंदा है, वरना सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। जो सब कुछ हो रहा है, इनू समझ लेना ही धर्म है, इनू समझ लेना ही भगती है, इसनू समझ लेना ही रूहानियत है। जो कुछ हो रहा है इसनू न समझना ते अपने करते भाव नू पैदा करना, बस यही अधर्म है, यही भुल है, यही गलती है। साहिब कहते हैं हुक्म ही इतना वड्डा है कि उसका हुक्म आख्या नहीं जा सकता। हुक्म ना कहा जाई, फिर भी सतगुरु चलो रसना छोटी सही, गल छोटी सही, तो चलो प्रभु दी छोटी गल का जिक्र होवे, पूरी नहीं, ता फिर भी कुछ उस हुक्म बारे विचार तो सतगुरु दसदे ने। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड़ियाई। जितने जीव ने प्रभु दे बनाए हुए हुक्म दे च ही बने ने, ओदी बनाई हुई मर्यादा दे विच ही बने ने। पंछियां दे पंख ते पंखां ते रंग बड़े बातरतीब ने। मछली दी शक्ल, मनुख दे शरीर दे च एक एक नस दा अपनी थां दे उत्ते होना, बड़ी अगम्मी ते अदुੱਤੀ मर्यादा दी झलक सामने दिखाई देंदी है। साहिब कहते जितने जीव ने, इन्हां जीवां दे च छोटे ते वड्डे, उत्तम ते नीच उस दे हुक्म दे मुताबिक ने। देखदे हां उत्तम ते नीच हर पदार्थ ते हर वस्तु ते हर जीव दे च ने। पत्थरां दे चों संगे मरमर सब तो उत्तम है। वैसे हीरा भी एक पत्थर है। पत्थरां दी शिखर, पत्थर वध तो वध अपनी बुलंदी नूं छू सकदा है तो वह हीरा ही है। पर एक आम पत्थर है, आम तो वो एक नीवा है, एक उत्तम है। प्रभु ने आप ही ये मर्यादा बनाई है। पत्थर तो हीरा किवें बनदा है, मनुख दी समर्था तो परे दी गल है। हीरे नूं कोई पत्थर बनावे, मनुख दे वस दी गल नहीं। पत्थर तो कोई हीरा बनावे, मनुख दे वस दी गल नहीं। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है, पत्थर ही हीरा हो जाता है, यह हकीकत है। तो हीरा पत्थर दा उत्तम रूप है, पत्थर पत्थर दा नीवा रूप है। बनस्पति दे झात मारिए चंदन सिरमौर है, इहदा कोई मुकाबला नहीं। किकर भी है, जंड है, ऐसे दरख्त ने कोई फुल नहीं, फल नहीं, महक नहीं, गुण नहीं, पर महक सुगंधी ते गुण नाल भरपूर खड़ा है। चंदन ए उत्तम वस्तु, ए उत्तम सुगंधी, ए उत्तम उसदा रूप परिपूर्ण परमात्मा दा बख्शिश कीता होया है। फुल्लां दे च जाइए ते कमल दी अपनी दुनिया है। उंज अक दा भी फुल होंदा है, गुलाब दा अपना एक खास स्थान है। पर अक दे फुल नूं गुलाब दे सामने रखिए तां कहना पैंदा, हे प्रभु तेरी बनी हुई मर्यादा दे मुताबिक कोई अक दा फुल है, कोई कमल दा फुल है, कोई गुलाब दा फुल है। इसे तरीके दे नाल चौपाए जानवरां दे झात मारिए, गऊ, शेर, हाथी ये अगे जापदे ने। लेकिन सूअर है, कुत्ता है, ये ते पछड़े हुए ने। किसे मनुख दी महिमा बयान करनी होवे, असी कह देने हैं ये ते गऊ वर्गा है, ये ते शेर वर्गा बहादुर है। लेकिन किसे मनुख दी निखिदता करनी होवे ते कहना पैंदा है ते सूअर वर्गा है, ये ते कुत्ते वर्गा है। तो चौपाए जानवरां दे कुछ नीवे ने, कुछ उत्तम ने, अति उत्तम ने। पंछियां दी दुनिया दे झात मारिए तो उत्थे भी कुछ पंछी शिखर ते पुजे ने, जैसे कि हंस है। पवित्रता दी दुनिया दे इतना अगे कि किसे महापुरुष संत दी तस्बीह देनी होवे पंछियां दे चों ते कहना पैंदा है हंस वर्गा। तो पंछियां दी दुनिया दे च हंस सिरमौर है, पर कौवे भी हैगे ने,
ਇੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਚ ਯੌਨ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਵਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹਿ ਦਿਸਾਂ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨ ਰਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ ਇੱਲ ਬਹਿਠੀ ਆਏ। ਇੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਚੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਚਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਖੈਰ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਹੰਸ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖਿਧ ਹੈ ਇਹ ਕਊਆ, ਇਹ ਇੱਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀੜਾ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੰਗੇ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਈਏ ਤੇ ਛੂੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੈ, ਘਾਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨਮਦਾ, ਉਜੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਰੂ ਥਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਸਬਜ਼ਾਜ਼ਾਰ ਹੈ तो धरती किधरे उत्तम है, किधरे नीवी है। ते हुण आ जाइए मनुख दी दुनिया दे विच। मनुखां दे चों भी कुछ मनुख अति उत्तम ने, अति उत्तम ने, कुछ नीच ने, कुछ बहुत नीवे ने। तो साहिब कहंदे ने उसदी बनी हुई मर्यादा दे मुताबिक कोई उत्तम है, कोई नीवा है। किसी दा रंग काला है तो हुण लख कोशिश करे ये चिट्टा नहीं हो सकता। रंग भी प्रभु तो मिलता है, नक्शो निगार भी प्रभु तो मिलते ने। जो कुछ उस तो मिले है उन्होंने खड़े मथे तस्लीम करन नाल ही सुख है, सकून है। तो साहिब कहते हैं हुक्म ही उत्तम नीच, हुक्म लिखे दुख सुख पाइए। लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक ही कोई दुख भोगदा है, कोई सुख भोगदा है। कोई मर्यादा की उलंघना करके दुख भोग लेंदा है, कोई मर्यादा की पालना करके सुख भोग लेंदा है। लेकिन मर्यादा की उलंघना करने की समर्था मनुख नूं उसने दिती है, यह भी उसका एक हुक्म है, यह भी उसकी एक मर्यादा है। मर्यादा की पालना मनुख कर सकता है, यह भी उसका एक हुक्म है, यह भी उसकी बनाई हुई एक मर्यादा है। तो साहिब कहते प्रभु की बनाई हुई मर्यादा दे विच कोई दुखी है, कोई सुखी है। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाई है। एक ना ते उस हुक्मी दी हुक्म द्वारा बख्शिश हो गई, रहमत हो गई, अपने चरना च थां दे दिती, नेचल वासा मिल गया। पर एक हुक्मी सदा भवाई है, एक बने हुए हुक्म दे मुताबिक सदा ही भटकते रहते हैं, सदैवी भटकते रहते हैं। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। लंबी यात्रा दे पै रहिंदे ने, जमदे रहिंदे ने, मरदे रहिंदे ने। हमेशा भवाईए भवाईए भवाली भाव चक्कर दे जिथों चलिया सी मुड़ के फिर उत्थे आया है। जन्म होया सी, मरिया है, फिर जन्म होया। तो जन्म तो चलिया सी, फिर जन्म ते आ गया, जन्म तो चलिया सी, फिर जन्म ते आ गया। इसे नूं कहंदे ने जन्म मरण दा चक्कर। जन्म होया सी ते हुण मर गया ते मुड़ के फिर जन्म ना होवे, चक्कर चों निकल गया। अगर फिर जन्म हो गया तो जिथों चलिया सी ये ते फिर उत्थे ही आ गया।
ਤੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਕ ਵਰਤੁਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੇ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਮੱਛੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਕਲੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਛਲੀ ਇਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤਾਕਤ, ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੱਛਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੱਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੱਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਛਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਾਂ। ਹਾਂ, ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸਾਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਗਰ ਦਾ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਗਰ ਦੀ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਤਨਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੋ ਮੱਛੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, परमात्मा किथे है। ये प्रश्न ऐसा है जैसे कोई मछली आखे सागर है किथे, समुंदर है किथे। इनू कौन आखे तू समुंदर दे विच ही है, तू सागर दे विच ही है। बंदे नू कौन दसे तू परमात्मा दे अंदर ही है। परमात्मा ने तेनू घेरे होया, तू परमात्मा दे विच ही सब कुछ कर रहे हैं। जैसे मच्छी मच्छी नू खा रही है तो सागर दे विच ही खा रही है। जैसे मच्छी मच्छी दी पालना कर रही है तो सागर दे विच ही कर रही है। कोई मनुख परोपकार कर रहा है तो परमात्मा दे विच कर रहा है, कोई मनुख दुराचार कर रहा है तो परमात्मा दे विच ही कर रहा है। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। दरअसल इस पंक्ति नू समझण लई दिमाग दे उत्ते बहुत जोर देना पेगा। हुक्म दे सब कुछ है, भाव सागर दे च ही मच्छी दा जीवन है। गल जिहड़ी है वो इतनी है। और सागर दे च मच्छी सब कुछ कर रही है, गंद भी सुट रही है, बच्चियां दी पालना भी कर रही है, छोटे छोटे बच्चियां नू खा भी रही है, अनर्थ भी कर रही है, अर्थ भी कर रही है। मनुख जो कुछ भी कर रहा है परमात्मा दे विच कर रहा है। ये समझ आउंदी है उसनू जिसनू परमात्मा दा बोध हो जाए। फिर इस तरह दा मनुख इस राज ते रहस नू समझ के परम आनंद दी दुनिया दे अठे पैर डुबिया रहिंदा है। तो सतगुरु कह रहे ने, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। रेत दे जर्रे तो लेके सूरज तक, कीड़ी तो लेके हाथी तक, सब कुछ हुक्म दे च है, सब कुछ प्रभु दे च है, सब कुछ उसदी बनाई हुई मर्यादा दे विच है। हुण सतगुरु दा फरमान है, नानक हुक्मे जे बुझै ताहो मैं कहे ना कोई। सतगुरु कहंदे ने इस हुक्म दी जे किधरे बंदे नू समझ आ जाए तां मनुख दा करता भाव खो जाएगा। वो नहीं, ये नहीं आखेगा मैं भी करता, मैं भी हाँ, हाँ मैं कहे ना कोई। फिर किसी ने हंकार नहीं करना, मैं भी हाँ, ऐसा फिर किसी ने कुछ नहीं कहना।
ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਹੰਗ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦੇ ਬੋਧ ਦੇ ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇ ਬੋਧ ਦੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਹੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, तो तू ही तू ही तू ही यही बोली गए, यही बोली गए। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज की रसना तो निकलिया सी तकड़ी तोलदे होया तेरा तेरा तेरा, ऐसे तेरे भाव दे लीन होए मेरा भाव भी खो गया, मैं ही मिट गया। ते जब तेरा भाव भी रह जाए मेरा मिट जाए बस ये धर्म की शिखरता नूं मनुख ने छो लिया। ते जिथे तेरा ही मिट जाए मेरा मेरा मेरा, जितना मेरा मेरा वधदा है उतना दुख वधदा है, जितना तेरा तेरा वधदा है उतनियां बरकतां वधदियां ने, उतना सुख वधदा है। सतगुरु दा फरमान भी है जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे। जिथे मैं मिट जांदा है उत्थे फिर तू दा जन्म होंदा है। भगत कबीर कहंदे ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। किसे उर्दू दे शायर ने इस संबंध विच एक बड़ी सुंदर काल्पनिक गल अपने शेर विच कथन कीती है। बकरे दी बोली है मैं, बकरा मैं दे जींदा है। ते जितना संसार दे बकरा जबा कीता जांदा है शायद ही कोई होर जानवर कीता जांदा होवे, क्योंकि मैनू ते जबा करना ही पेगा। मैनू कुदरत नहीं प्रवान करदी, मैनू नहीं कबूल करदी। तो शायर कहंदा है फखर बकरे ने किया बस मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं बस जहां में दूसरा कोई नहीं। जब न मैं तर्क की बेजरब बेबाक ने, फेर दी तब जल के गर्दन पर छुरी कसाब ने। गोश्त हड्डी जो था चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लुटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ से धुन की बनाने के लिए। जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। जिस दिन मैं मिटदा है उसे दिन ही तू दा जन्म होंदा है। तू पूजिया जांदा है, तू सदैवी है, तू अमर है, तू सच है, तू सुंदर है। मैं ते काल दे च हां, मैं करूप हां, मैं ते दुख हां, मैं ते अज्ञान हां। मैं करन वाला अज्ञान दे च जींदा है, मैं करन वाला दुख दे च जींदा है, मैं करन वाला चिंता दे च जींदा है। तू करन वाला और तू हो जान वाला परम आनंद दा रूप बन जांदा है। साहिब कहंदे नानक हुक्मे जे बुझे ता हूं मैं कहे ना कोई। जिसनू हुक्म दी समझ पै जाए फिर उत्थे आहंग भाव मैं हां ये भाव मिट जांदा है। साडा जन्म हो गया है, सब कुछ हो रहा है, साडी चाहत नहीं सी, असी अपनी चाहत दे मुताबिक मां बाप नहीं चुने। हो गया है जन्म,
ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। तो सब कुछ हो रहा है, जिसने दे दिता है, जो कुछ दे दिता है इनू कबूल कर ले, इनू प्रवान कर ले। जिहड़ा आखे ये मां मैनू कबूल नहीं, ये प्यो मैनू कबूल नहीं, पर इनू कौन दसे मां ते बाप नू तू कबूल कर सके, तू प्रवान कर सके, तू चुन सके। इस तरह की चुनौती ते तैनू दिती ही नहीं गई, ये ते हक तैनू दिता ही नहीं गया। सब कुछ हो रहा है, उस परिपूर्ण परमात्मा तो हो रहा है। इस गल की समझ आउंदे ही आहंग भाव मिट जाता है बे जिस तरह मैनू मां बाप मिले ने, जिस तरह मैनू तन मिले है, इसी तरह जगत दे सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। समझ आउंदे ही मनुख परम विश्राम दे चला जाता है। समझ आउंदे ही जन्म ते मरण दे चक्कर दे चों निकल जाता है। जिस दिन ये पूर्ण तौर ते बोध हो जाए सब कुछ हो रहा है। असी मकान बनाना होवे, मकान तो पुछदे नहीं तू बनना भी चाहना है कि नहीं। असी मकान ढाना होवे ते मकान तो पुछदे नहीं तू ढहना भी चाहना है कि नहीं। रब साथों नहीं पुछदा तू जमना भी चाहना है कि नहीं। रब साथों नहीं पुछदा तू मरना भी चाहना है कि नहीं। ये ते जोर न जीवन मरण न जोर, ये जन्म मरण हमरे वस नाई, ये ते साडे वस दे च नहीं। संसार दे ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੌਤ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਝੂਠ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟੇ। ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਮੈਂ ਦੀ ਕੰਧ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ।